Am I audible? Yes. Okay. A very happy New Year to all of you. सबको नया साल मुबारक हो. This is our first Sunday. Usually Justin is the one who takes, and that is how the turn of events happen every year, almost every year for the last couple of years. पिछले 2 साल भाई जस्टिन ने नव वर्ष की शुरुआत पहला मैसेज उनका रहा है. But this time it comes to me. परंतु इस बार ये मेरी बारी है. We thank God for the reading of the word. Let us just give a word of thanks. प्रभु के वचन के पढ़े जाने के लिए हम धन्यवाद दें. Loving Heavenly Father, we thank you, Lord, for this beautiful morning that you have given us. We thank you for the word that has come to us this morning. Help us, Lord, so that we may listen and listen intently. Open our hearts to the right understanding of your word. Help us not to be just hearers, but be doers of your word. Calm our hearts. Help us not to be distracted by anything that rules us this morning, but your word and your word alone. We ask this in the most precious name of our Lord and our Savior Jesus Christ. Amen. I was supposed to preach last Sunday. पिछले रविवार मेरा बारी था प्रचार का. And that was the last Sunday of 2025. और वो 25 का आखिरी संडे था. And I knew about it almost 3 to 4 weeks back that I had to preach. और 3 से 4 हफ्ता पहले ही मुझे पता था कि मेरी बारी थी. And I was starting to think as to what should I preach. और मैं इस बारे में सोच रहा था कि किस विषय पर मैं प्रचार करूं. And reflecting back on 2025 and of various different things, the aspect of spiritual friendship came up very strongly to me. कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मेरे मन में जो विचार उठा वो ये था, आत्मिक मित्रता के विषय पर कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाह रहा था. But Naveen took that topic in one of the cottage meetings at Papa's place. भाई नवीन ने कॉटेज मीटिंग में जो पापा के घर पे हुआ था उसमें उस विषय के बारे में कुछ बातों को रखा. But that did not deter me. I'm going to take the same topic. परंतु उससे मैं रुकने वाला नहीं हूँ. मैं आपसे उसके बारे में अच्छे से बात करके ही जाऊँगा. I think and I deeply believe this, that as we start this year, this is going to be foundational and very important as we lead a life in this church and in this community. जब हम इस साल में प्रवेश कर चुके हैं और अब इस साल जब आगे बढ़ेगा तो मैं ये समझता हूँ कि ये विषय आत्मिक मित्रता हमारे लिए सैद्धांतिक होगा और हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी एक विषय, मूल विषय बन के रहेगा. I have titled my sermon today as Biblical Friendship, the New Reality. मैंने आज का शीर्षक इस प्रकार रखा है, वचन आधारित मित्रता एक नई सच्चाई. You can almost see Ashish's influence in terms of the titles. We live in this world which is one of the epidemic, as I would want to call it, is loneliness. एक ऐसी दुनिया में हम रहते हैं जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि एक महामारी फैल रही है जिसका नाम है अकेलापन. And it is not just being physically alone. ये ऐसा नहीं अकेलापन जहाँ पे आप शारीरिक तौर पे अकेले हैं. But the deeper ache of being unknown or unseen or unsupported. पर अंदरूनी दर्द जो है जहाँ पे ऐसा लगने लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं, सहायक कोई भी नहीं है, हम अकेले डूब रहे हैं. We live in a world of social media wherein we can have 1,000 online Insta or Facebook friends. हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ पर सोशल मीडिया का समय है, जहाँ पे हम हजारों के तादाद पे अपने मित्रगण बना सकते हैं. But still feel very empty inside. परंतु अंदर में हम एकदम खोखला और खाली और अकेले अपने आप को पाते हैं. And still I believe a lot of us wonder and think and believe that if only we have one good friend, it is much better than 1,000 social media friends. और कई बार मैं ऐसे सोचता हूँ कि हम और सब हम यहाँ पे बैठे हर व्यक्ति ऐसा सोचता होगा कि काश एक ऐसा व्यक्ति होता जो हमें जानता और हमसे प्यार करता और समझता. And in John 15, Jesus speaks into that ache of the human heart. और जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के इस एकाएक होने का दर्द को यहाँ पे महसूस करते हुए इस बातों को यहाँ पे बताया. He offers a new reality.
उसने एक नए सच्चाई को, एक नए अस्तित्व को यहाँ पे प्रस्तुत किया। And just to avoid and just to be very clear, this is no inference from any text. It is Jesus himself speaking. यहाँ पे याद रखे, कोई पुराने नियम की बात यहाँ पे नहीं दोहराई गई है। प्रभु यीशु मसीह के खुद उनके स्वयं के बोल हैं ये। He does not merely give an advice about friendship, but he redefines friendship. यहाँ पे सिर्फ एक परामर्श दे के खत्म नहीं करता मित्रता के बारे में, परंतु मित्रता क्या होनी चाहिए उसको वो पुनः स्थापित करता है। That's why my area of focus would be from verses 14 to 17. इसलिए मेरा जो ध्यान का विषय जो भाग होगा वो 14 से लेकर 17वीं आयत तक के भागों में होगा। John 15 verse 15, what Jesus says should really stop us and make us think. 15 में जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस पर हमें थम जाना चाहिए और हमें सोच विचार करना चाहिए। No longer do I call you servants, but I have called you friends. अब तुम्हें मैं दास नहीं कहूंगा परंतु मित्र कहा करूंगा। And the Greek word used is philos, which means friendship. यहाँ पे जो ग्रीक यूनानी शब्द का प्रयोग हुआ है फिलोस, जो जिसका मतलब मित्र था। And then he gives us the pattern, the purpose, and the power for true friendship that can only be seen in the realm of a Christian relationship. और यहाँ पे उसके बाद प्रभु यीशु मसीह हमको बताते हैं कि मसीह मित्रता की क्या ऐसी बातें हैं जो हमें समझ रखनी चाहिए जिससे कि हम उस प्रकार की मित्रता को कायम कर सकें। That is what I want to dwell on this morning, and I want to walk you through three things that I have in mind. आज सुबह इस विषय पर मैं आपके सामने आपसे बात करना चाहूंगा और 3 बातों को यहां से उजागर करना चाहता हूं। What does biblical friendship look like? यहां पे मसीही मित्रता किस प्रकार दिखती है। Second, why do we need it and why we should pursue it? और क्यों, दूसरी बात, क्यों हमें जरूरत है, और तीसरा, हमें क्यों इसके पीछे हो लेना है। And third is, how is Jesus foundational to true friendship? और तीसरी बात, कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे मित्रता के लिए सैद्धांतिक हैं, नैतिक हैं। On Jaden's request, I'll repeat these 3 points once again. जेडन के रिक्वेस्ट पर मैं इस बातों को, 3 बातों को आपके पास साथ दोहराना 3 चाहूंगा। things. What does biblical friendship look like? पहली बात, मसीही मित्रता किस प्रकार दिखता है। Second, why do we need it and why should we be pursuing it? दूसरी बात, क्यों हमें इसकी जरूरत है, हम इसके पीछे क्यों जाएं। And third, how is Jesus foundational to true friendship? और कैसे, तीसरी बात, मसीह जो है इस मसीह मित्रता के लिए सैद्धांतिक है। What does biblical friendship look like? पहली बात, मसीह मित्रता किस प्रकार दिखता है। Biblical friendship is not casual or transactional or temporary. मसीह मित्रता जो है वो क्षणभंगुर नहीं है, सिर्फ लेन देन का नहीं है। It is not like I'm with you as long as you are of use to me. हम ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं तब तक आपके साथ हूं या मित्र तब तक हमारे साथ है जब तक हमारी आपकी जरूरत है। But as we read this passage, it is more closer to a covenant, a chosen committed love that grows over time. अगर आप इस भाग को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एहसास होने लगेगा मित्रता जहां पे प्रभु यीशु मसीह जिसको कहते हैं वो वाचा रूपिक है, एक ऐसा समर्पण है जो जीवन के पूर्ण समय के लिए है। And John 15 shows us that friendship has a shape. और यहाँ पे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में हमको दिखाता है कि इस मित्रता का एक आकार है, एक डॉल है। And it goes 2 ways. और यहाँ पे वो 2 तरफा है। One, it helps us to measure our friendships. पहला, ये हमें नापने में मजबूर करता है कि हमारा मित्रता कितना गहरा The है। second, very important, is what kind of friend am I becoming? और दूसरा कि किस प्रकार का मित्र मैं बनता जा रहा हूं, इसको नापने में हमें मदद करता है। So, how does biblical friendship look like? The first one under that is that biblical friendship is constant. यहाँ पे पहली बात, कैसा मसीही मित्रता दिखे। पहली बात, मसीह मित्र है जो है वो स्थायी है। It loves at all times. In Proverbs 17:17 we read, नीति वचन 17:17 में हम पढ़ते हैं कि वो हर समय प्रेम करता है। A friend loves at all times and a brother is born for adversity. एक मित्र जो है हर क्षण हमारे साथ प्रेम के साथ है, भाई जो है विपत्ति के समय के लिए है। TK says this very interesting observation. यहाँ पे
केलर नामक प्रभु के दास ने इस प्रकार से इस पर टिप्पणी करते हुए कहा is that we have relationships which is our, we may have brothers and sisters and very close and near ones. हमारे रिश्ते में भाई बहन होंगे, घरों में भाई और बहन या भाई भाई हो सकते हैं। And that's a relationship that you cannot change. You like it or not, they are your brother and sister. ये पारिवारिक रिश्ते हैं, इसको आप बदल नहीं सकते हैं, चाहे आप चाहें ना चाहें। And they might be there in the time of adversity. वो आपके विपत्ति के समय आपके साथ वो रहेंगे, But it's not necessary that they may like you. परंतु ऐसा नहीं कि वो एकदम आपके पसंदीदा हैं या वो आप उनके पसंदीदा हो। But the friend is not like that. परंतु मित्र इस प्रकार के नहीं हैं। He loves you and he's there because he's doing it out of his own volition. मित्र जो है वो आपसे प्रेम करता है, आपको समझता है, आपके साथ बना रहता है और अपनी इच्छा अनुसार वो चलता है। It doesn't disappear when it becomes very inconvenient, embarrassing or costly. और ऐसा मित्र नहीं है जो गायब हो जाता है जब मौका मुश्किलातों का हो और समय खराब हो जाए और मित्र गायब हो जाए, ऐसे मित्र नहीं। We see a powerful image of friendship of David and Jonathan in 1 Samuel 18 verses 1 to 5. पहला शमूएल की किताब उसके 18वें अध्याय में हम योनातान और दाऊद की कहानी को, उनके मित्रता के बारे में पढ़ते हैं। Oh, such a beautiful use of language. It says that the soul of Jonathan was knit to the soul of David. और वहां पे इस प्रकार से विवरित किया गया है कि योनातान का दिल जो है वो दाऊद के दिल के साथ बुन दिया सा गया हो। And Jonathan loved him as his own soul. और उसने अपने मित्र को अपने आत्मा जैसे प्यार किया। Oh, it was loyal and sacrificial. वो एक ऐसा मित्रता जो कायम था और बलिदान पूर्वक He था। stood with David even though it threatened his own status and future. अपनी गद्दी की परवाह ना करते हुए, परिवार की परवाह ना करते हुए उसने अपने आप को दाऊद के साथ जो सही था, अपने आप को उसके साथ टिका दिया। Second, biblical friendship is candid. It is truth without flattery. दूसरा, मसीही मित्रता जो है चिकनी चुपड़ी बातों पर आधारित नहीं है, वो सच्चाई सुदृढ़ रूप से हमको बताता है। Proverbs 27:6 it says, 27वां अध्याय नीति वचन के उसके 6ठी आयत यूं कहता है, faithful are the wounds of a friend, विश्वास योग्य हैं उन मित्र के घाव, but profuse are the kisses of an enemy. परंतु दुश्मन जो मित्र के रूप में आता है उसके जो चुम्बन होते हैं वो बहुत आयत होके होते हैं। A true friend encourages, but he is not a flatterer. एक सच्चा मित्र जो है वो प्रोत्साहित करता है, परंतु चिकनी चुपड़ी बातें करके हमको बटर नहीं लगाता है। Yeah, but we like flattery, right? परंतु हमें वो बटर लगाने वाली मित्रता पसंद आती है जहां पे हमको ऐसे फुला फुला के चिकनी चुपड़ी बातें कह के हंसा दे। But it leaves you unchanged and unsafe in the long run. परंतु ऐसी मित्रता में ना फंसे, क्योंकि ये आपके जीवन को कतई नहीं बदलता है, आपके जीवन में ऐसी कोई फर्क को ये नहीं ले आ सकता। Because biblical friendship is courageous enough to tell you the truth. क्योंकि मित्रता वचन आधारित हो तो वो आपको बिना डर निडर होकर सच्चाई आपके सामने प्रस्तुत It करेगा। includes honest counsel. एक ऐसा मित्रता जहां पे परामर्श जो है वो दिल की है, सच्चाई की है। And most times honesty stings. और कई बार जो है सच्चाई जो है जब पूर्ण हृदय के साथ बताई जाती है वो चुभ जाती है, But it saves. परंतु वो हमें उद्धार भी देता है, बचाता है। Would you know what's the difference between niceness and kindness? आपको क्या इसके बारे में मालूम है? अंग्रेजी शब्द नाइसनेस और कोमलता, काइंडनेस के बीच का फर्क क्या है? Mostly we are kind or we are nice? Nice is safer, isn't it? नाइस जो है यानी अच्छे से हैं तो हमारे लिए सुरक्षित है। Oh, we shouldn't say this, it's just nice to be kind, just be polite to this person. हमें सच्चाई इतनी ज़्यादा नहीं बोलनी चाहिए, उनको दर्द ना पहुंचना चाहिए, हम भी ठीक हैं वो भी ठीक है वाली हालत है। But it would be a kindness on behalf of a friend to tell me something which I don't like, but the conversation is not going to be nice. काइंडनेस यानी कोमलता, उसमें
इस बात को समझना ज़रूरी है कि हर समय शायद कोमलता एकदम कोमल कोमल सा नहीं लगेगा, वो ठोस लगेगा, सीधी बात बोल दी जाएगी, परंतु वो हमारे मित्रता के लिए और हमारे मित्र की उन्नति के लिए बोली जाती है। When we have difficult conversations, जब हम मुश्किल के वो वार्तालाप में हम होते हैं, it is the best form of kindness that you can extend to your friend. तो वो एक ऐसा कोमलता है जो सबसे उत्तम तरीके का हो, जहाँ पे आप विश्वास योग्यता के साथ, सच्चाई के साथ, दिल के साथ अपने मित्र से अपनी बात को, दिल की बात को रखते हैं। That's why true friends don't merely affirm your feelings, but they help you follow God. इसलिए सच्चे मित्र जो हैं सिर्फ आपकी भावनाओं को, आपकी मन की मनसाओं को ही नहीं छूते हैं, परंतु वो आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप प्रभु परमेश्वर के पीछे एक सच्चे चेले के समान चल पाएं। That's why friendship is not, I mean, it's more than just chemistry. It is a shared direction, it is a shared truth, and it's a shared vision. इसलिए मित्रता जो है वो एक, जैसे अंग्रेजी में लोग कहते हैं केमिस्ट्री, सिर्फ महज केमिस्ट्री नहीं है, परंतु मिलजुल के एक दृष्टिकोण रखना है, मिलजुल के एक उद्देश्य को रखना है, एक लक्ष्य की ओर मिलजुल के बढ़ना है। Not only that, biblical friendship is careful, it is safe and sensitive and not destructive with words. मसीही मित्रता जो है बोलकर किसी को खत्म करने वाली बात नहीं है, वो ध्यानपूर्वक है, वो सुरक्षित रखना चाहता है, बनाए रखना चाहता है, उन्नति चाहता है। A true friend will not, or a Christian friend will never trade in gossip. एक सच्चा मसीह मित्र जो है चुगली कर कर अपने जीवन को, अपनी मित्रता को, अपने मित्रों के बारे में बताकर जिएगा नहीं। Lot of times we want to believe that when we talk about different people, we are doing that with a very good intent. कईयों बार हम दूसरों के बारे में जब बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे मन के साथ शायद इन विचारों को रख रहे हैं, परंतु ध्यान दीजिए कि किसी के बारे में ऐसी बातें करना उनके लिए हानिकारक है और वो अच्छी बात नहीं है। This is the best definition I have heard about what gossip is. और चुगली के बारे में मैंने जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, ये मुझे लगता है कि सबसे अच्छा एक डेफिनेशन है। If we meet together and discuss a third person, अगर हम मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो वहाँ उपस्थित नहीं है उनके बारे में बात करें तो, and we move away or end that conversation without any solid actionable to engage with that person, और अगर हम उस बातचीत को उसको वहीं खत्म कर देते हैं और उससे कोई उद्देश्य उस तीसरे व्यक्ति के लिए ना रखें तो, to engage and help this person, कि उनको हम मदद करें और उनकी उन्नति को हम ध्यान में रखें, then effectively it's called gossip. तब उसको आप ये समझ लीजिएगा कि ये चुगली करने के माफिक है, चुगली है। And this really matters और ये ध्यान देने वाली बात है, because many friendships are destroyed by not by very major betrayals but by thousands of small wounds like these. परंतु क्यों ऐसा मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि कई मित्रताएं जो हैं, ऐसी अच्छी मित्रताएं, ऐसी छोटी छोटी बातें इधर उधर करने से मित्रताएं खत्म हो जाती हैं, टूट जाती हैं। It doesn't mean that we are going to cover the sin of your friend. ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप अपने मित्र के पाप को ढांपने की कोशिश कर रहे हैं, छिपाने की कोशिश कर But रहे a हैं, good friend refuses to do what? It refuses to weaponize weakness. परंतु एक अच्छा मित्र वो है जो दूसरे मित्र की कमजोरी को हथियार बनाकर उसी को घात ना करता हो। Another aspect of biblical friendship is self-giving, or you readying to take the second place in the relationship. और दूसरा जो बात पहले पॉइंट के अंतर्गत बोलना चाहता हूं कि वो ऐसा मित्र है जो हर समय अपने आप को बलिदान देने के लिए तैयार है, दूसरा स्थान लेने के लिए तैयार A है। good friendship is not measured by what you can get, but what you can give. एक अच्छी मित्रता इससे नापी नहीं जाती कि आपको कितना उसमें से प्राप्त हो रहा है, परंतु इसमें कि आप कितना दे सकते हैं अपने मित्र की उन्नति के लिए। Friendship is not meant to fill our emptiness, but it is meant to give and teach us what love is all about. मित्रता हमारे खालीपन को भरने के लिए नहीं है, मित्रता आपके तरफ से दूसरे की खालीपन को उसको सुधारने, संवारने और बनाने के लिए है।
the ability to take the second place, to serve, to sacrifice, and to be a giver in the relationship. मित्रता इस प्रकार होनी चाहिए जहां पे आप दूसरा स्थान लेने के लिए तैयार हैं, अपने जीवन के बलिदान को देने के लिए तैयार हैं ताकि आपके मित्र की उन्नति हो पाए। But I want to be very careful while I say this. परंतु ये कहते समय मैं सतर्क और सावधान रहना चाहता हूं। Sometimes very seemingly good friendships where you are the giver, कईयों बार ऐसा होता है कि जब आपकी मित्रता में जहां पे आप देने वाले होते हैं, you may not realize that you are being silently abused in the relationship. आपको एहसास नहीं होगा, शायद कई बार ऐसे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं जहां पे आप दे तो रहे हैं परंतु आपको एहसास नहीं हो रहा कि आपका उपयोग गलत तरीके से किया जा रहा है। And you don't realize, or maybe you realize that you're continuing to do these things in spite of all that, because you need the other person's approval or recognition. और कईयों बार आप उस अब्यूज को, उसके गलत उपयोग को आप समझ नहीं सकते हैं, शायद आप समझ भी रहे होंगे परंतु आप उसको दे देना नहीं चाहते, गलत को आप गलत समझना नहीं चाहते क्योंकि आप उस व्यक्ति को खोना नहीं चाहते। The idea of taking second place is voluntary, and it does not come at the cost of lowering your value or your self-esteem. अपने आप को दे देने का मतलब ये नहीं कि अपने आप को इस कदर दे देना जहां पे आपका दुरुपयोग हो रहा है और आपके साथ लोग जो हैं अनैतिक फायदा उठा रहे हैं। How many of us have heard the name Martin Luther? कितनों ने हमारे बीच में मध्य में मार्टिन लूथर नाम सुना है? Right? Almost everyone, right? हम में से Quite a सबने इस famous नाम name. सुना होगा। Have you heard about a person called Philip Melanchthon? आपने फिलिप मेलांकथॉन नाम सुना, शायद नहीं सुना होगा। नहीं सुना होगा। He was the greatest and the closest friend of Martin Luther. मार्टिन लूथर का सबसे निकट का दोस्त, मित्र, सहकर्मी फिलिप मेलांकथॉन था। If Luther was very forceful and uncompromising, and he was the guy on the stage, and he was like out there, visible to the world. लूथर जो था वो बोलने वाला था, सरगर्म था, वो लोगों के सामने प्रत्यक्ष होकर अपनी बात को रखता था। But Melanchthon was somebody who was behind the scene, but they were sharing in the common vision of the gospel of Jesus Christ. फिलिप मेलांकथॉन उस समय उसके पीछे था, पर्दे के पीछे काम करने वाला व्यक्ति था। I just wanted to share this just to give a faint hint of what taking a second place means. तो मैं इसलिए मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि फिलिप मेलांकथॉन कभी भी आगे आकर उस नाम और उस प्रकार से नहीं किया। मार्टिन लूथर के उस मिनिस्ट्री में फिलिप मेलांकथॉन का पर्दे का पीछे का काम था, उसने उसकी सारी मदद की, लेख में, बातचीत में, हर चीज में। And after Martin Luther died, after 14 years is when Philip Melanchthon died. मार्टिन लूथर की मृत्यु के 14 साल पश्चात फिलिप मेलांकथॉन की मृत्यु And हुई। such great was the friendship known to the church that they chose to bury him close or beside Martin Luther. और कलीसिया में उनकी मित्रता के बारे में इतनी लोगों को जानकारी थी कि जब फिलिप मेलांकथॉन की मृत्यु हुई तो उनको मार्टिन लूथर के कब्र के बगल में दफनाया गया। And that is exactly what a true reflection of what how it is two friends working together for the same cause looks like. और ऐसा ये चित्र होना चाहिए हमारे मित्रता के जब विषय में हम बात करते हैं। And this is what we must remember is that good friendships are often discovered through shared truth and common passion. तो हमें क्या समझना चाहिए कि सच्ची मित्रता जो है वो एक हमारे साथ मिलजुल के जो हमारी दृष्टिकोण, एक दर्शन है उसमें से, और एक हमारे साथ मिलकर जो हम एक पैशन रखते हैं, एक सरगर्मी रखते हैं किसी एक चीज के लिए, कुछ करने के लिए, उसमें हम सच्ची मित्रता पाते हैं। But they are forged over time through deliberate availability and showing up repeatedly and constantly. परंतु मित्रता तब कायम होती है, बनती है जब हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, ध्यानपूर्वक समय बिताते हैं। Why do we need it and why should we pursue it? हमें इसकी जरूरत क्यों है और इसके पीछे हमें क्यों हो लेना है? If biblical friendship is so rich, why don't we desire it? अगर मित्रता, मसीह मित्रता इतना ही अच्छा है और धनी है,
क्यों नहीं हम इसके पीछे हो लेते हैं, हम क्यों नहीं इसको चाहते हैं? The answer is not that we don't need it, but the truth is that we don't pursue it. सच्चाई ये नहीं है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, पर सच्चाई ये है कि हम इसको जानबूझकर हम इसके पीछे जाना नहीं चाहते हैं, ऐसी मित्रता नहीं चाहते हैं। But as we read John 15 and what Jesus is talking about friendship, it is very clear that friendship is not optional for spiritual health. यहाँ पे जब आप 15वें अध्याय की इन आयतों को पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मसीह मित्रता जो है वो आपके लिए एक विकल्प आधारित नहीं है। Because God is going to use and has used and will use friendship as one of his key means of sustaining people in his community. क्योंकि मित्रता जो है परमेश्वर का देन है, सामाजिक संतुलन बनाए रखने में मित्रता का एक बहुत ही प्राथमिक योगदान है और ये परमेश्वर के द्वारा है और इसलिए ये कायम रहेगा। We need friendship because God has designed us for fellowship. हमें मित्रता की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारी बनावट उस प्रकार का है जिसमें हमें संगति जरूरी है। In Genesis 1, when we see God creating humanity in his image, it was primarily for fellowship, not because God lacked something. यहाँ पे उत्पत्ति के पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं मनुष्य की सृष्टि के बारे में तो हमें समझ में आता है कि प्राथमिक तौर से मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने संगति के लिए की, इसलिए नहीं कि परमेश्वर में कोई कमी थी, परंतु इसलिए क्योंकि वो संगति बहुत ही सुंदर और बहुत ही लुभावना वाला है। Because relationship is part of his design and delight. क्योंकि मित्रता जो है यानी संबंध रखना ये परमेश्वर की दिल से है, वो उसका स्रोत है। And when man sinned, that is when loneliness started, and that is what we see in all of history and in all of the scriptures post the fall. इसलिए जब मनुष्य ने पाप किया पहली बार तो हम ये बात देखते हैं कि मनुष्य के पाप करने के पश्चात परमेश्वर के साथ जो संगति थी, संबंध था, वो टूट गया और वहां से मनुष्य का अकेलापन शुरू होता है। And that is why loneliness is not a small issue of how even God sees it. और इसलिए ये समझना वाजिब है आज के सुबह कि अकेलापन, मनुष्य का अकेलापन परमेश्वर को भी दिखता है और उसके लिए एक साधारण सी बात, छोटी बात नहीं है। So until we realize our friendship with God first, all other friendships are going to never satisfy you and me. और इसलिए कहने का तात्पर्य ये कि जब तक कि हम परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते की प्राथमिकता नहीं समझते, उसके साथ हमारी मित्रता को नहीं समझते, बाकी सारी मित्रताएं हमारे लिए असफल और हमारे लिए एक बड़ा भार और हमारे लिए नुकसानदायक बन के रह जाएगा। We need friendship because spiritual life is not meant to be lived alone. हमें मित्रता इसलिए जरूरत है क्योंकि हमारी आत्मिक जीवन हम अकेले में नहीं जीते हैं। आत्मिक जीवन की भरपूरी के लिए अच्छे मसीह मित्रता की जरूरत है। In his last days, Paul is writing to Timothy, and in 1 Timothy 4 onwards, if you look at, he's writing and he's asking that he's mentioning that Luke is alone with me, but get Mark and bring him along, for he is useful. The ministry that he has done in various places. He was one of the strongest believers that we see in the scripture, but he also needed friends. हम जब पौलुस के बारे में पढ़ते अगर आप उसको ध्यान देंगे तो वो एक अपने में एक बहुत ही सुदृढ़ व्यक्ति था। उसने कितनी बड़ी सेवकाइयां की, परंतु उस पौलुस को भी जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, उसको भी एक मानुषिक मित्रता की जरूरत थी। He was courageous, he was the missionary, he was the apostle, but yet he was deeply relational. वो मिशनरी था, प्रभु का सेवक था, प्रभु का वचन का प्रचारक था, वचन लिखने वाला था। सब कुछ होने के बावजूद उसको मित्रों की जरूरत थी। He was not asking for Mark to come and serve him, but he was asking Mark for what? For the ministry. वो मरकुस को ये भी कहता है कि आज उसको लेके आओ ताकि वो मेरी सेवकाई करे, परंतु मरकुस को लेके आओ ताकि हम मिल के साथ में कलीसिया की सेवकाई करें। Oh, the common vision that needs to be there in good biblical friendship. एक सच्चे मसीही वचन आधारित मित्रता में एक दर्शन को रखना चाहिए जो हम मिल बांट के करते हैं। We need friendship because God uses it to mature us and sustain us. हमें मित्रता की जरूरत इसलिए है क्योंकि प्रभु हमें मित्रता के द्वारा
हमें परिपक्व करता है, सिखाता है। A good friend will help you to carry burdens, resist temptation, and recover from failure and persevere in faith. एक अच्छा मित्र वो होगा जो आपके साथ चलेगा, आपको उभारेगा, आप जब गिरेंगे तो आपको खड़ा करेगा, आपको सच्चाई बताएगा, प्रोत्साहित करेगा ताकि आप मसीह विश्वास में आगे बढ़ें। And friendship is a place where encouragement really, we can almost see what encouragement looks like. It becomes tangible to us. जब मित्रता की बात करेंगे तब हमें समझ में आने लगेगा और सच्ची मसीह मित्रता में ये बात सामने आने लगती है कि प्रोत्साहन का सच्चा अर्थ क्या है। And not only do we need friends, but we need to be friends. हमें सिर्फ मित्रों की जरूरत ही नहीं, मित्रता करने की जरूरत नहीं है, हमें मित्रों की जरूरत भी है। As we see, it's a two-way street. जैसा कि मैंने पहले बोला, ये दो तरफा मित्रता है। But many of us, we want the community as comfort, but avoid community as a responsibility. हम में से कईयों को इस समूह की जरूरत एक आराम के लिए है, एक सोच के लिए है, परंतु हमारे लिए ये समूह जो है हमारा उत्तरदायित्व, हम उसको उस प्रकार से नहीं देख पाते, समझ पाते हैं। Biblical friendship requires initiative and intentionality. मसीही वचन आधारित मित्रता जो है उसमें हमें चाहिए कि हम पहल करें और हम मसीही मित्रता में इस समूह के लिए उत्तरदायित्व रखें। It's such a beautiful picture in Acts 20 when Paul is leaving. And they gathered together to give him the farewell, and there are shared tears, shared prayer, shared life, and shared counsel. All of it, we see such a beautiful picture, and that kind of community is not accidental. It is cultivated or it is created. It is intentional. प्रेरितों के काम 20 अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस को उन लोग विदाई दे रहे हैं और वो वहां पे एक साथ एकजुट है, उनका उद्देश्य एक है, प्रोत्साहन एक है, और जब वो भेज रहे हैं प्रार्थना पूर्वक पौलुस को, वो वहां पे विदाई करके उसको अपने अगले गंतव्य की ओर भेजते हैं। Now the greatest enemy to we pursuing friendship is not because we don't like making friends, but in today's age and time it is about what? The famous word, very busy. Busyness is the biggest enemy to making good friendship. ऐसा नहीं आज की हमें हमारी मित्रता की जरूरतें खत्म हो गई हैं और हम कहीं और पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें मित्रों की आवश्यकता नहीं है, परंतु आज के दिन में, युग में सबसे बड़ी समस्या हमारी मित्रता के में दुश्मन बन के जो खड़ा होता है वो है हमारा व्यस्त हो जाना। We want teachings of Jesus. हमें मसीह के वचन पढ़ाए जाना हमें अच्छा लगता है, हम चाहते भी हैं। But we often don't want to learn the way Jesus viewed and approached time. परंतु हम मसीह के दृष्टिकोण को अपनाना नहीं चाहते। कैसे मसीह ने अपने जीवन में इस संसार को देखा, मित्रों को देखा, समूह को देखा, उसको हम अपने जीवन में लागू या अपनाना नहीं चाहते। How did he view and approach time? कि किस प्रकार से उसने समय का उपयोग देखा। Jesus always lived with margin. He always gave time. He had lot of time for people. हम मसीह यीशु के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि उसका समय का उपयोग उसने बहुत ही सुदृढ़ रूप से किया, जिससे कि उसके पास लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए, चेलों के लिए, अपनों के लिए समय था। If you look at his ministry, you would constantly see that he was interrupted. आप अगर उसकी मिनिस्ट्री को, कार्य को देखेंगे, सेवकाई को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अनेकों बार उसे, वो जब सेवकाई कर रहा था तो उसे रोक दिया गया या उसको लोगों ने वहां से उसका ध्यान भटका दिया। Or he might be coming down from a mountain and suddenly a leper would come. वो पर्वत से उतर रहा होगा और वहां पे कुष्ठ रोगी उसके सामने आ जाता है। And then there would be a centurion who would be sending his entourage or his soldiers to ensure that to tell him that his servant is unwell, if he would come and heal. और एक सेंचुरियन, एक सैनिक ने उस समय वहां पे आके प्रभु यीशु मसीह से वो भेंट करता है, कहता है कि मेरे बच्चे को बचा लो। Lot of interruption that we saw. He was, but what's the beauty of his ministry? He always had time for them. और हम कई बार देखते हैं कि सेवकाई के दौरान उसको बीच में रुकावट
देखनी पड़ी, सामना करना पड़ा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं सेवकाई खत्म करता हूँ फिर तुमसे बात करता हूँ। वहीं रोककर उनके समस्याओं को उसने सामना किया, उसको उसके पहल की। We might be good Christian, but if we are busy and too busy for others, then trust me, we are in a far more worse place. हम अच्छे मसीह हो सकते हैं, परंतु दूसरों के लिए अगर हमारे पास वक्त नहीं है, मसीह जनों के लिए, कलीसिया के लिए वक्त नहीं है, मसीह मित्रों के लिए वक्त नहीं है, तो शायद हम एक बहुत ही खतरनाक एक जगह पर हैं अपने जीवन में। And I think it was decades ago, Corrie ten Boom, she mentioned that if Satan can't make you bad, then he will make you busy. कोरी टेन बूम करके एक मसीह सेविका थी, उन्होंने कहा है कि अगर शैतान तुम्हें, if Satan can't make you busy, अगर शैतान तुम्हें खराब नहीं कर सकता है, तो अपवित्र नहीं कर सकता है, तो तुम्हें व्यस्त तो जरूर कर देगा। You want to hear that again? If Satan can't make you bad, अगर शैतान आपको खराब अपवित्र ना कर सके, he'll make you busy, तो आपको व्यस्त ही कर देगा। And we sort of are much okay with that understanding, or we are sort of largely settled for that in our lives. और हमने इस बात को मान लिया है, हम आरामदायक हो गए हैं इस विचार पर कि हम व्यस्त हैं, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास मित्रों के लिए वक्त नहीं। Right, and that's why some time back I think Abhishek mentioned our conversations even within the church are just limited to how are you and how's your work. इसलिए भाई अभिषेक ने कुछ समय पहले इस बात को भी रखा था हमारे मध्य में कि कलीसिया के समूह में भी, इस प्रभु यीशु मसीह के देह में भी हमारे जो वार्तालाप है, आप कैसे हो, कैसा चल रहा है, इसी पर सीमित और निपट जाते हैं। Business quietly kills friendship. हमारा व्यस्तता जो है वो मित्रता को खत्म कर देती है। So yes, we need friendship and we need to pursue it. हमें मित्रता की जरूरत है और उस पर बने रहना, लगे रहना, पीछा करते रहना जरूरी है। And we must pursue it with intention. और हमें पूर्ण विचार के साथ, ध्यान पूर्वक उसकी ओर बने रहना जरूरी है। Three practical things that I just want to quickly share with you before we conclude with the third point. तीसरी बात को बताने से पहले दो बातें प्रायोगिक तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूँ। The first one is that we need to desire friendship. पहली बात, हमें एक मित्रता की मनसा होनी चाहिए, and we need to create time for it. और उसके लिए वक्त निकालना जरूरी है। There are a lot of us who today don't really feel the need to have friends. हम में से कई अनेक ऐसे हैं जिनको मसीही वचन आधारित मित्रता की आवश्यकता दिखती नहीं है, जरूरत नहीं लगता। Needing friends is not weakness, but it is wisdom. मसीह विश्वासी मित्रता की जरूरत रखना जो है वो हमारे लिए कमजोरी नहीं परंतु ज्ञान की बात है। Because God cares for us through the presence of His people. क्योंकि प्रभु अपने लोगों के द्वारा हमारे लिए अपना प्यार, अपना ध्यान हम पर लगाता है। Friendship is a good thing. मसीही वचन आधारित मित्रता बहुत ही उत्तम एक बात है। But we don't desire it anymore as intently or intensely. You know why? Because we have this small device on our hands which has sort of made us so comfortable because it comes at no cost of commitment or relationship. आपके हाथ में जो स्पर्श रूपी यंत्र है उसने इस प्रकार आपको जोड़ दिया है उसमें कि आपको अब किसी और की स्पर्श या मित्रता की जरूरत नहीं लगती। आप आराम से उस यंत्र के साथ अपना जीवन भर बिता देंगे और आपको कभी भी एक अकेलापन का अनुभव लगेगा नहीं। You and me, we can tell as much as we want that we don't have time, but the truth is that we make time for things that we desire. आप कह सकते हैं हमसे कि आपके पास वक्त नहीं है, आप व्यस्त हैं, परंतु मैं आपको चुनौती के साथ कह सकता हूं कि हमारे पास वक्त है परंतु वक्त निकालने के लिए नहीं है, क्योंकि हम उन चीजों में वक्त लगा देते हैं जो हम मन से चाहते हैं, जिस पे हमारा मन आ गया हो। My encouragement to you this morning is that can good friendship find it into the list of the things that you desire? मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ, क्या मसीही
वचन आधारित मित्रता इस सूची में जो आपने अपने लिए बनाई है, जो उस पे आपका मन आ गया हो, उस सूची में क्या ये मित्रता मसीह वचन आधारित मित्रता जुड़ सकता है या नहीं? Because if you desire, you will make time. क्योंकि आपने अगर इसके ऊपर मन लगाया है, मसीह मित्रता के चाह में है, तो आप उसके लिए वक्त ढूंढ निकालेंगे। Second is to choose friends intentionally. और दूसरी बात है, आप मित्रों को सोच बूझ के साथ, समझ बूझ के साथ और इंटेंशनली, उद्देश्य पूर्वक चुने। John 15:16, Jesus says, "You did not choose me, but I chose यूहन्ना you." रचित सुसमाचार 15:16 में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुमने मेरी चुनाव नहीं किया, मैंने तुम्हें चुन लिया है। God chooses people. He built friendship and not projects. परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने मित्रों को चुना है, उनको एक प्रोजेक्ट नहीं बना दिया है, उनको एक कार्यक्रम नहीं बनाया है, परंतु चुना है ताकि वो मित्र बने और वो साथ रहें सदैव। But in saying so, there is a principle that we can draw is the ability to choose friends. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब इस बात को कहते हैं तो एक सिद्धांत को हमारे सामने छोड़ रहे हैं, जिसमें हम अपने लिए एक क्षमता प्राप्त करें, जैसे कि जिससे कि हम मित्रों की चुनाव कर पाए। But that also comes with responsibility. परंतु वो भी एक उत्तरदायित्व के साथ आता है। That doesn't mean that we can walk up to somebody today and say, "Okay, you know what? I want to be a friend." ऐसा नहीं कि हम आज, क्योंकि प्रभु ने एक ऐसा सिद्धांत दे दिया है, तो हम आज किसी के सामने भी जाके पहुंच के बोल दिए, चलो आज से मैं तुम्हारा मित्र। And without even considering that what is the other person wanting or desiring. और ये भी सोचे समझे बिना कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, समझ रहा है, बस मित्रता चाहते हैं तो इसलिए हम मित्र बन जाएंगे, ऐसा नहीं It है। has to be mutual and organic. ये ऐसा होना चाहिए जिसमें ये जैविक है और ये साथ साथ है, And it's going to take time and consistency. और इसमें समय की जरूरत है और लगातार बने रहने की जरूरत है। And it is no surprise that the example or the imagery that God or Jesus starts off is telling that He is the true wine. और इसलिए प्रभु ने एक उपमा यहाँ पे देते हुए कहता है कि मैं दाखलता, सच्ची में मैं दाखलता हूँ। And that is where the scripture pushes us to start this morning, is that we need to choose intentionally, initiate, send the message, make the plan, show up repeatedly. Friendship is created. इसलिए कहने का तात्पर्य ये कि मित्रता जो है वो जैविक है, और इसलिए उसको करने के लिए बने रहना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, पीछे रहना पड़ता है, तब जाके लगातार समय निकालना पड़ता है, तब जाके सच्ची अच्छी मित्रताएं बनती हैं। And Luke 10:27 it says, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself." इसलिए लूका में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम परमेश्वर की आराधना पूरे सूझबूझ समझ और सब कुछ के साथ करो और अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। And somebody rightly said that your immediate neighbor is your spouse. और इसलिए किसी ने बोला कि तुम्हारा जो करीबी पड़ोसी जो है वो तुम्हारा पति या पत्नी है। So if you are married and at home, अगर आप विवाहित हैं और घर पे हैं, if you are married, begin at home. अगर आप विवाहित हैं तो शुरुआत घर पे करिए। If you are somebody who doesn't view your partner as good friend or your best friend, you are missing out on something beautiful. अगर आप वो हैं जिसको अपने परिवार में, अपने दंपतियों में, पति या पत्नी, आपको अपनी मित्रता उसमें पहली प्रथम नहीं दिखती, तो आप कुछ खो रहे हैं, कुछ आपसे छूट रहा। You have the best fun and learning if you share a great friendship with your spouse. अगर आप अपने पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ अगर आप मित्र नहीं हैं, तो आप एक अच्छे सीख का और एक अच्छे वक्त को आप खो बैठ रहे हैं। A great friendship really defines a lot of things and sets a great example and sense of security for your children. आपके बीच की जो संबंध है, जोड़ जो है, मित्रता जो है, आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए एक बहुत ही सिद्धांतिक सुरक्षा प्रदान करता है।
And if you are married and you have great relationship with your spouse and great friendship, अगर आप विवाहित हैं और आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा और सुदृढ़ और सुंदर रिश्ता मित्रता रखते हैं, then it's a great time to branch out in the community and make more friends. तब ये अच्छा वक्त है कि आप समूह में और दोस्तों को बनाएं, share in the goodness. अच्छाई भलाई में भागीदार हो जाएं. For youths and unmarried believers, युवाओं के लिए और जो विवाहित नहीं है उनके लिए this matters deeply. ये उनके लिए बहुत ही जरूरी है. Be careful who shapes you. आप ध्यान रखें कि आपको बना कौन रहा है. The key question that you need to be asking today is that, is your friendship drawing you near to Christ or is it pulling you away? मूल सवाल ये है कि क्या आपकी मित्रता, आप जिससे मित्रता कर रहे हैं वो आपको प्रभु यीशु मसीह की ओर खींच रहा है या आपको आप प्रभु यीशु मसीह से दूर लेके चला गया है. Now I'm sure after this meeting the next question is that can't we make friends with unbelievers? तो मैं इस बात से भी वाकिफ हूँ कि इसके बाद सभा के बाद आप मुझसे सवाल पूछेंगे क्या अन्य अविश्वासियों से क्या हम मित्रता नहीं बना सकते. But the good question to ask is that, I mean, there is no harm in having good friendship. We do have. We are at workplace. We are at different places that demands us to be in a setting. We will have good relationships and friends. But the question is that who is influencing who? ये बात सत्य है कि हमारे और अविश्वासी मित्र होंगे. वो हमारे काम की जगह पे, हमारे पढ़ाई लिखाई कॉलेज स्कूलों में सब जगह हम लोगों से मिलते जुलते हैं, हमारी मित्रता बनती है. सवाल ये है कि कौन किसको प्रभावित कर रहा है. Do they have a clarity of who you are as a Christian? क्या उनके पास इतनी स्पष्टता है कि आप मसीह होने के नाते आपके उसूल क्या क्या हैं? And yes, it is important for us to be making good friends with unbelievers to draw them to Christ rather than being pulled away into the world. तो ये बात सही है कि अविश्वासियों के साथ संबंध और मित्रता बनाना अच्छी बात है, परंतु उनसे प्रभावित होकर उनकी ओर खींचना नहीं, वरन उनको प्रभु यीशु मसीह की ओर खींच के लाना ही हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए. It's a very simple criterion. Christ must be first and should be central to the relationship that you have. तो इसमें सबसे प्राथमिक सिद्धांतिक बात क्या होनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह केंद्र में होने चाहिए. उनका ही सोच और विचार हमारे मित्रता को बनाना चाहिए. We looked at what does biblical friendship look like and why do we need it. हमने ये देखा कि मसीह विश्वासी मित्रता कैसे है और हमें किसकी जरूरत क्या है. Let me finish this off with the third point. Why? तीसरी बात को कह के मैं आपको यहाँ पे समाप्त करना How चाहूँ. is Jesus foundational to true friendship? कैसे मसीह जो है इस विश्वासी मित्रता, मसीही वचन आधारित मित्रता में सिद्धांतिक. Now when Jesus says to whom? To his disciples that you are my friends, he is not giving an example कि this might be a good thing to do. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब चेलों से कहते हैं कि मित्रता की जरूरत है, तो ये ऐसे साधारण रूप से नहीं कह रहा कि ये तुम्हारे लिए अच्छी बात होगी, करना है तो कर लेना. Jesus is not only our example of good and what true friendship looks like, but he is the foundation of it. मित्रता का सुझाव देके प्रभु यीशु मसीह छोड़ नहीं देता, परंतु समझने वाली बात यह है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने आप को हमारे मित्रता की नैतिक आधार मानते हैं. Jesus brings a new status from servants to friends. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने एक नया स्तर को दिया है इन लोगों के लिए, चेलों के लिए. उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें सिर्फ सेवक नहीं परंतु मित्र बुलाया. In the Old Testament, we only see a few people like Moses and Abraham who are called the friend of Jesus. पुराने नियम में अगर आप ध्यान देंगे तो मूसा, इब्राहिम, उस प्रकार के कुछ ही जनों को प्रभु के परमेश्वर याहवे के मित्र करके माना गया है. The average Israelite would have always compared or related to God more like a servant to master. और अगर बाकी इजराइलियों के बारे में अगर आप ध्यान दें उन समयों के, उन कालों के पुराने नियम में, तो उनकी जो मानसिक स्थिति प्रभु परमेश्वर से किस प्रकार की रही होगी, वो एक स्वामी और चेले या स्वामी और दास का रिश्ता उनके मन में रहा होगा. But Jesus says something new is happening. I have called you friends. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि कुछ नया हो रहा है. क्या है
कि मैंने तुम्हें मित्र करके कहा है, And for what I have heard from the Father, I have made known to you. और जो कुछ भी मैंने पिता से सुना है मैंने तुमको सब बातें बता दी हैं। But this friendship is also not between equals. Yet Yeah. He chooses us. यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि ये दोनों सामान्य स्तर के मित्र हैं, फिर भी असामान्य होने के बावजूद वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना मित्र करके कहा। He is the Lord, He is God, we are not. वो परमेश्वर है, वो प्रभु है, हम नहीं हैं, Yet He chooses us. और फिर भी उसने हमें चुन लिया है। But what is key is John 15:14 is that you are my friends if you do what I command you. यहाँ पे मूल बात क्या है? तुम मेरे मित्र हो क्योंकि तुम मेरी आज्ञा मानते हो। Friendship with God doesn't happen because we obey. ऐसा नहीं कि हमारा मित्रता परमेश्वर के साथ तभी होता है जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं, But it flows as a response of the friendship. परंतु ये एक ऐसा बात है जहां पे हमारे मित्रता के कारण उसके फलस्वरूप इस आज्ञाकारिता को हम देखते हैं। Just like Jesus references his relationship to his Father and why he obeys flows because of the relationship of the Father. जैसा कि प्रभु यीशु मसीह अपने रिश्ते को परमेश्वर पिता के साथ कहता है कि वो मेरे रिश्ते के कारण मैं अपनी इच्छा को अपने पिता की इच्छा के अनुसार करता हूँ। That's why friendship with God changes what you love, what you live, and what you pursue. इसलिए जब आप परमेश्वर के साथ मित्रता करते हैं तो आप क्या चाहते हैं उसमें एक बदलाव आ जाता है। Jesus also frees us from using people, but empowers us to love like Him. और जब प्रभु यीशु मसीह को आधार मानकर हम चलते हैं तो हमें स्वतंत्रता इस बात से मिल जाती है कि हमें किसी और व्यक्ति की या मित्र की उपयोग या दुरुपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए है। Because when you are secure in Jesus' love, क्योंकि जब आपका पहचान प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में आधारित और सुरक्षित है, you will stop squeezing people to fill your emptiness. तब आप लोगों को निचोड़ना बंद कर देंगे जिससे कि आपके दिल की खालीपन की भरपाई हो पाए। Because it is very true that nobody can fill your emptiness but God. क्योंकि ये बात वास्तविक सच्चाई है कि परमेश्वर के अलावा ऐसा कोई इंसान नहीं है संसार में जो आपके दिल के अकेलेपन को पूर्ण कर पाए। And when you grow and when you are filled with His love, you become capable of constant love, honest truth, careful speech, and wise counsel. जब आप उससे प्रेम करेंगे प्राथमिक तौर पर, तो उसका प्रेम, उसका स्थायी प्रेम, स्थायी परामर्श, उसकी सुरक्षा, उसका आधार आपके जीवन में दिखेगा, आपकी मित्रता में झलकेगा। Because you are being shaped by a friend who never fails. क्योंकि आपको बनाने वाला एक ऐसा मित्र है जो कभी भी आपको अधूरा, अकेला, असफल नहीं छोड़ेगा। I think someone once said this किसी ने इस प्रकार यूं कभी कहा है in a very light-hearted way. एक हास्य तौर पर कहा है। And he says that nobody talks about Jesus' greatest miracle. इसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के सबसे बड़े आश्चर्य कर्म के बारे में किसी ने भी कभी बात नहीं की है ज्यादा। Anybody knows? Putting it into this context, somebody said the greatest miracle of Jesus was having 12 close friends at the age of 30. प्रभु यीशु मसीह का किसी ने इस प्रकार कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म ये था कि 30 साल की उम्र में 12 ऐसे व्यक्ति जो इसकी कुछ नहीं सुनते थे उनको उसने मित्र माना। And it's a very interesting observation that we had more friends while we were at school, college, but as we grow, our friends, the numbers dwindle, isn't it? ये सच्चाई है, वास्तविकता है कि स्कूल कॉलेज में हमारे मित्र की संख्या ज्यादा होती है, जब उम्र बढ़ने लगता है मित्रों की संख्या जो है कम होने लगती है। But coming back to these 12 close friends, यहाँ पे इन 12 चेलों के मित्रों के बारे में जब हम बात करें तो Jesus was a good friend. प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा अच्छा मित्र था। How were these friends? ये मित्र कैसे थे? None of them were good and faithful friends to Jesus. प्रभु यीशु मसीह के लिए ये लोग अच्छे विश्वास योग्य मित्र नहीं रह पाए। Not until resurrection. मृत्यु जब पुनरुत्थान तक ये मित्र नहीं बन पाए।
None of them proved their loyalty when it mattered the most. अपनी मित्रता की गुणवत्ता को प्रभु के साथ रख नहीं पाए जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे। When we think of betrayal, whose name comes first? Judas' name comes first. जब आप तिरस्कार का जब सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह को किसने तिरस्कार किया तो यहूदी इस्करियोत का नाम आपके सामने आता है। विश्वासघात, बकरवान है, विश्वासघात, तो पतरस का नाम आता है। Judas. Yeah, but the truth is that all of them betrayed him. सच्चाई ये है कि betrayal is तिरस्कार, that is why। I mean, विश्वासघात, धोखा। हाँ ठीक है, धोखा। Okay, correct, got it। But the truth is that everyone abandoned him. पर सच्चाई ये है कि 12 में से 12 चेलों ने प्रभु को छोड़ दिया, विश्वासघात। All of them failed. सब ने उसको छोड़ दिया, वे असफल अपनी मित्रता में प्रभु की ओर हो गए। And Jesus knew it. और ये प्रभु जानता। And yet in his last hours, what does he tell him? आखिर के वक्त में, उन लम्हों में प्रभु ने क्या बोला? This is the upper room discourse that we see, as part of chapter 15. यहाँ पे 15वें अध्याय में ऊपरी कमरे में बैठकर प्रभु इन बातों को जब कहता है, उसका भाग है ये। Knowing all that is coming, he calls them what? I call you friends. ये बात ध्यान में रखते हुए जानकर भी कि ये लोग इसको प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चले जाएंगे, प्रभु ने कहा कि मैंने तुमको मित्र कर कहा है और चुन भी लिया। That means when we are in friendship with Christ, इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मित्रता में हैं, that means his friendship is not based on our performance, but it is based on his love. इसलिए वो हमारे योग्यता अनुसार, हमारी कार्य अनुसार मित्रता में हमने कितनी मित्रता निभाई है, उसके आधार पर प्रभु ने हमको मित्र नहीं बनाया है। I find 14 very fascinating. You are my friends if you do what I command you. The question is, do we do what he commands? 14वां आयत बहुत ही अच्छा सा एक आयत है। अगर तुम मेरे मित्र हो जब तुम मेरी आज्ञा मानो, क्या हम उसकी आज्ञा मानते हैं? We fail so often. हम तो अनेकों बार असफल हो जाते हैं, but there is only one who truly did, and that was Jesus. एक ही है जो असफल नहीं हुआ है, वो है प्रभु यीशु मसीह स्वयं। That is why if there has to be one person who has to be a reference for true friendship in the strongest way possible, it has to be Jesus. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही हमारा एक वो आधार, सिद्धांतिक और एक उदाहरण, अगर आप सच्चे मित्र का देख रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। Verse 13, greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. इसलिए 13वें आयत में कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी ने नहीं कि किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। Jesus didn't preach that, he did it, he lived it, and he fulfilled it. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ बात रखी नहीं, कही नहीं, सिर्फ कहना ही नहीं, पर प्रभु ने स्वयं करके भी उसको दिखाया। And I want you to draw your attention to the cross. इसलिए आज आइए क्रूस की ओर अपनी नजरों को थोड़ा देखिए। Jesus did what no human friend could do completely. प्रभु यीशु मसीह ने वो कार्य किया जो पापी मित्र नहीं कर पाए। He didn't just sympathize with our pain, but he bore our judgment. वो सिर्फ हमारे दर्द को ही नहीं समझा, परंतु हमारे ऊपर आने वाले प्रकोप को, परमेश्वर के दंड को उसने अपने ऊपर ले लिया। He didn't just comfort our fear, but he took our condemnation. उसने सिर्फ हमारे भय को ही समाप्त नहीं किया, परंतु हमारे दोष को उसने अपने ऊपर ले लिया। He didn't just say stay near the suffering or near in suffering, but he entered the suffering in our place. हमारे कमजोरियों में, हमारे मुश्किलातों में वो सिर्फ समीपता नहीं दिखाया, परंतु उसने हमारे मुश्किलों में प्रवेश कर गया। On the cross, Jesus took what sin the punishment of the sin that we deserved. प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु का जो दंड हम पर आना चाहिए था, उसने अपने ऊपर ले लिया। He absorbed the wrath and the penalty. उसने उस पाप की मृत्यु को अपने ऊपर, परमेश्वर के प्रकोप को जो पापियों के ऊपर था, उसने अपने ऊपर ले लिया। He faced abandonment so that we could be welcomed.
उसने वो तिरस्कृत हो गया ताकि हमको आमंत्रण दिया जाए, हम प्रवेश कर पाए। He died for us while we were not friends. वो मारा गया जब हम उसके मित्र नहीं थे। We were God haters. हम परमेश्वर की घृणा करने वाले थे, उससे घृणा रखने वाले थे। But He rescued us from the eternal separation from God. उसने हमें बचाया, उस अनंतकालीन मृत्यु से, अलगाव से हमें बचाकर, from eternal damnation and bringing us into peace with the Father. कि हमको उस अनंतकालीन दंड से बचाकर परमेश्वर प्रभु के साथ एक शांति के रिश्ते में बांध दिया। And in some time as we partake of this table, और जब हम इस मेज से थोड़ी देर में भागीदार होंगे, we are not remembering what happened in the past. हम ये नहीं सोच रहे हैं सिर्फ कि भूतकाल में क्या हुआ, But we can say this with confidence because He has risen from the dead. We can say this with absolute confidence that He is our friend, the one who has promised to never leave us. पर हमें ये मेज वो भी याद दिलाता है कि वो जी उठा है, और इसलिए आज वो सिर्फ मेरा मित्र था नहीं, परंतु आज प्रभु यीशु मसीह हमारे मित्र हैं। So the question today is not only do we have good friends, but the key question would be if we have received Jesus as our friend and savior. तो सवाल ये नहीं है कि हमारे पास क्या अच्छे मित्र हैं, परंतु सवाल ये कि क्या हमने और हमारे मित्रों ने प्रभु यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता रूप ग्रहण किया है, नहीं किया। But because we abide in His love, और चूंकि हम उसके प्रेम में बने हुए, we finally gain the power to live out His command that is in verse 12, love one another as I have loved you. और तब हमको, क्योंकि हम उसमें पाए जाते हैं, इसलिए हम इस आज्ञा को जो 12वीं आयत में हम देखते हैं कि प्रेम करो और एक दूसरे से प्रेम रखो। May God give us the grace to be intentional, to make good friendships. इसलिए प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम ध्यानपूर्वक अच्छे मसीह वचन आधारित मित्रों को बना पाए, which would be marked by constancy, candor, carefulness, and counsel. कि ऐसे मित्रता जो स्थायी हो, ध्यानपूर्वक हो, सुरक्षित हो और फलने फूलने वाला। Because we belong to that one friend who gave his life to क्योंकि save हम us. उसके मित्र हैं जिसने अपने जान को हम जैसे दुश्मनों के लिए, जिन्होंने घृणा किया था उससे, उनके लिए उसने अपनी जान को दी। Oh, what a friend we have in Jesus. कि प्रभु में हमारा कैसा अच्छा मित्र है।